everyone, welcome to Maneuver MBA Entrance. So hope so guys, preparation is going good, and this is a part 2 from the business GK, specifically for the student those who are preparing for the MBA entrance and targeting these exam CUET TIS, where you will see 10 to 15 questions from this area. In that 25 questions you can see from the GK and current affairs. In MICAT 20 questions you can see from this section, and CMAT exam 20 question will come, and in MAT exam 30 question you will see from the GK and current affairs area, and other MBA entrance exam where you will see the GK section. So this session will be helpful for you. So basically this is the part 2 series here we started, and in this series we will discuss about the from 1st June to 8th June most important current affairs, specifically MBA entrance oriented, which will be very helpful for these exam and other MBA entrance which you are targeting. So previous part 1 you can see, and in this part basically we will see the second part. Okay, so let's start the session and see the most important and expected question for your exam. And one very important information, अगर से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, because continue you will get the update related to exam oriented information, strategy, and best shortcut materials basically you will get. So here is a 2 groups if you will join, so सारे updates आपको मिल जाएंगे. I will share these questions, इसका monthly compodium I will also share, so easily you will get for the revision purpose. These are the Instagram and Facebook you can follow for the latest notification and updates. And those who are planning for the next 2025 के most of the MBA entrance exam को target कर रहे हो और अच्छे percentile अच्छे score के साथ crack करना है, so here you can join online and offline. मैं details में बताऊंगा end of the video. Let's पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. सारे क्वेश्चंस सारे फिल्टर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है. मोस्टली यू विल सी इन सब सारे करंट अफेयर्स को प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को अंडरस्टैंड करके सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है. तो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करना एवरीवन, सो काफी बेनिफिशियल होगा. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन. सो वेरी साइंस एंड टेक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, as well as यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है तो काफी इंपॉर्टेंट है. सो इट्स लर्सन एंड टर्बो, L&T, एंड मैप इंडिया, Anjikul, Cosmos, and OneWeb. What is the name of the company which is the first company to design such type of the first 3D printed engine? So correct answer इसका याद रखना, it's Anjikul, और इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी, so that's why it's more expected. पूरे साल तक ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है. Has successfully tested its फर्स्ट इंजन स्टेज रॉकेट, अग्निबाण इसका नाम है. इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा डिटेल में आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक क्वेश्चन से जितने भी एस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है, बट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हियर यू कैन सी हैज बीन डन फ्रॉम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड. इट्स लॉन्च पैड नेम इज व्हाट, धनुष लॉन्च पैड, एंड वेयर इज इट, श्री हरिकोटा. तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है. द नेम ऑफ द मिशन इज अग्निबाण. ओके, एंड दिस इज ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट. सो बेसिकली रिमेंबर रखना कि यहाँ पे इंडिया में इंडिया की फर्स्ट कंपनी है, ये फर्स्ट इस टाइप का इंजन को डिजाइन किया गया 3D. ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है यहाँ पे, where will India's first multi-modal logistic park be built? So again here you can see this is what, first multi-modal, so that's why it's important. So it's in Chennai and Gonda, Pune and Patna. In which city basically you can say. So थोड़ा सा आप eliminate भी कर सकते हो, because Gonda, Patna, यहाँ पे तो पोर्ट बेसिकली है नहीं. So this is the first multi-modal logistic park. So where is it? Chennai. So multi-modal logistic park is right handling facility. It has been facilitated like the transportation facility, mechanism, warehouse, cold storage. So everything will be available. Where is it? In Chennai. Okay, remember rakna, because it is the first multi-modal. Next question, what is the rank of India in the World Travel and Tourism Competitiveness Index 2024 of World Economic Forum? Okay, so World Economic Forum ने बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज किया है. एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो ये जो रैंकिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी एक्सपेक्टेड होते हैं. लास्ट एग्जाम के लास्ट 3-4 मंथ 6 मंथ पहले के जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग हो, ट्राई करो उसको अच्छे से रिवाइज करने का. तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स रिलीज्ड बाय
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मैंने बोला था सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड ना हो, तो अच्छे से रिवाइज करना एंड जो ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन करना, उसमें कंटिन्यू अपडेट्स एंड मंथली कंपोडियम, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एज वेल एज बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहती है। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रुप। सो 39 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स 2024 इज आउट, इंडिया एट द रैंक 39th एंड इस साल थोड़ा सा बेटर किया है। प्रीवियस अगर से रैंकिंग देखोगे तो इट वाज द 54th। now India is doing better in this field. And which one is the best country? तो United States of America was the rank number 1. ओके, तो यहाँ पे जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो भी मैंने इंक्लूड किया है कि जिससे आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए, बट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे हु ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? Just note down, this is a most important questions, highly expected questions है guys ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो बेसिकली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है कि जो नॉवेल्स यूके में दूसरे लैंग्वेज में लिखे जाते हैं बट इट्स ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऐसे नॉवेल्स को मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ जेनी इपनबैक, जॉर्जी गॉस्पोडिनो, गीतांजलि श्री एंड फ्रैंक वेन? What is the name of the author who is the recipient of this international Booker Prize? तो इस क्वेश्चन को पूरे एक साल तक एक्सपेक्टेड रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। So just remember the name of this author. Here you can see in this image, so easily you can remember. Okay, so recently queries by Jenny Ippenbach, translated by the Michael Hoffman, has won the International Booker Prize. So यहाँ पे ट्रांसलेटर का नाम भी आप रिमेंबर रख सकते हो, समटाइम क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ सकता है। It is awarded the annually for the finest single work fiction for the around the world which has been translated into the English and published in the UK and Ireland. Okay, तो बेसिकली जो नॉवेल्स होते हैं दूसरे लैंग्वेज में लिखे होते हैं और उनका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो ऐसे नॉवेल को मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो नॉवेल ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सच टाइप ऑफ द नॉवेल रिसीव व्हाट बुकर प्राइज, उनको सिर्फ बुकर प्राइज। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको भी अंडरस्टैंड करना। एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा था कि टिस्क के एग्जाम में स्टूडेंट ने ये बहुत सारी मिस्टेक की थी, पूछा था इंटरनेशनल, उन्होंने पूछा था इंटरनेशनल बुकर प्राइज का पूछा था और लोगों ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो ऑप्शन था उसको मार्क कर दिया था, उसमें जो नाम दिया था। ओके, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। बेसिक डिफरेंस जो अवार्ड्स हैं क्या है, किस फील्ड में दिया जाता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है, इसका स्टैटिक पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। Who has been elected as the president of the Confederation of the Indian Industry CII for the 2024-2025? So again important questions. So Sanjay Puri, Rajiv Memani, Sanjay Nair and Ashish Shah. What is the name of the person who is elected as the president of the CII? So business GK से ये काफी important है, important personality point of view this question may be asked. So Sanjeev Puri, just you can remember here, you can see in a photo. So chairman of the managing director of the ITC, Sanjay Puri, has been elected as the president of the Confederation of the Indian Industry CIA for 2024-2025. So important personality appointment and इस point of view से ये question काफी expected है। Next है यहाँ पे who is the first Indian to win the Best Actress Award at the Cannes Film Festival? So यहाँ पे भी देखो फर्स्ट इंडियन है विन द बेस्ट एक्ट्रेस, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी इस टाइप के फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ब्यूटी पैजेंट होते हैं, उसमें जो इंडियंस अगर से कोई हो जाए, किसी इंडियन को कोई अवार्ड मिल जाए, चाहे वो ब्यूटी पैजेंट हो या फिर फिल्म फेस्टिवल हो, तो वो समझ लेना क्वेश्चन मतलब हाईली एक्सपेक्टेड बन जाता है एग्जाम्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुषा सेनगुप्ता। सो Chindan Naik film Sunflower were the first to won the Chief Award and Best Short Film, while the Anusha Sengupta became the first Indian win the Best Actress Award for her film Shameless. So सारे डिटेल्स यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे इस मूवी का नाम भी आप याद रख सकते हो इन बेस्ट शॉर्ट फिल्म में और यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, तो दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया विच इज हेल्पफुल फॉर यू। सो इन डिटेल जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको भी अच्छे से आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस कंटेंट तो नीचे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना,
तो ये मैं वहां से शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा और हर वीक में आपको मिलते रहेगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड जो स्टडी मटेरियल्स कंटिन्यू हम शेयर करते रहते हैं, तो वो आपको बेसिकली मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, काफी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली अमंग द इंडियन सिटी इन द ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024? So 350, 250, 150 and 450. So what is the rank of Delhi? Basically यहाँ पे question पूछ रहा है in global city index. So 350 you can remember. So global city index 2024 has been released by the Oxford Economics. Delhi is the highest ranked Indian city at the 350 positions. New York USA is the rank first followed by the London. तो एक global city के लिस्ट में जो रैंक है इंडियन सिटी दिल्ली का, तो जस्ट रिमेंबर एक ये भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग इंडेक्स जो रिलीज होते रहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Which has become the first largest trading partner in financial year 2024. So 2024 में बेसिकली जो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज हुआ है, इंडिया का जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है, तो देखो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस जीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है। So is it China, Australia, Japan and France? What is the name of the country? So correct answer यहाँ पे हो जाएगा China, and China become the India largest trading partner in the financial year 2024. India trade with the China financial stand the 118.4 billion. So China has appointed and Zhu Yang as the new ambassador to India. So this is also one additional information which you can remember. कभी-कभी पूछ लेता है ऐसे जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर होते हैं या फिर इंडियन पर्सन जो फॉरेन में किसी पर्टिकुलर वेल नोन गल्फ कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्री या नेबरिंग कंट्री में ऐसे अपॉइंटमेंट होता है जो एम्बेसडर्स का, तो वहां से भी कभी-कभी पूछता है क्वेश्चन। तो जब लेटेस्ट करंट अफेयर्स जब आप रीड कर रहे हो तो ऐसे इंफॉर्मेशन पे भी फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा और चांसेस बढ़ जाता है आपके क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन को कवर करने का, और एक्सपेक्टेड भी होता है ऐसे क्वेश्चंस। Who is the highest paid athlete according to the Forbes? According to the Forbes, what is the name of the sport personality who is the highest paid athlete? So Virat Kohli, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and John Ram. So what is the name of the sport personality, athlete, whatever you can say? So as per the Forbes report, who is the highest paid? So just remember ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में और डिफरेंट एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, तो एज पर द जो भी उस जिस टाइम पे करंट अफेयर्स में जो रहता है उससे रिलेट करके पूछा जाता है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द पोर्तुगीज फुटबॉल प्लेयर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप द फोर्थ लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द फोर्थ टाइम इन हिज करियर। According to the Forbes, Ronaldo earnings are around 260 million. So guys, you can remember the name of this personality, very well known football player. Okay, now the question number 10. What was the total value of India export in the financial year 2023 and 2024? So देखो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस डॉलर समथिंग समथिंग समथिंग, दीज आर द ऑप्शन। अगर आप कंटिन्यू रीड करते हो तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, नहीं करते हो तो ऐसे न्यूज पे फोकस करो। बेसिकली ये सेशन इसीलिए है कि आप सारे न्यूज को अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज इफ यू विल फॉलो दिस सीरीज तो यहाँ पे फिल्टर क्वेश्चंस को जो न्यूज होते हैं करंट अफेयर्स में जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो जाता है वो सारे यहाँ पे फॉर्म की फ्रेम करके आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं कि जिससे आप लोगों का एफर्ट बच जाए। तो कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। ओके, सो these are the details which you can read if you want, so you can pause the video, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, otherwise you can download from the group ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। Which bank has introduced the IRIS Common as You Are talent acquisitions program to recruit the individual from the LGBTIQ community across the India for the career in banking? तो एक काफी बेटर इनिशिएटिव है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक व्हिच स्टार्टेड सच टाइप ऑफ द इनिशिएटिव? इज इट यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI Bank? What is the name of this bank? So just remember the name of this bank is what? Axis Bank. Axis Bank's groom LGBT plus talent and career in banking. Basically this service is started by the initiative started by the Axis Bank. Here I mentioned some important details, static information related to Axis Bank which you can read. Okay, तो कभी-कभी बैंक्स जो न्यूज में होते हैं, कोई नई सर्विस स्टार्ट करते हैं, किसी का MD चेयरमैन अगर चेंज हुआ तो ऐसे बैंक से रिलेट करके उसके हेडक्वार्टर्स, उसका फॉर्मेशन ईयर, ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होते हैं स्टैटिक जीके से। ओके, तो ट्राई करो कि डायनेमिकली अगर आप स्टडी करोगे ना,
कि जो चीजें करंट अफेयर्स में है उसका स्टैटिक अगर से आप अपडेट करोगे तो इट्स वेरी इजी, आपको बहुत लेस स्टडी करना पड़ता है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज signed a deal with the Athlete Federation of India to become its official kit sponsor. So what is the name of this company? So Puma, Adidas, Reebok and Red Tap. So what is the name of this company? Basically they made the sports related product. Okay, so किस कंपनी का यहाँ पे टाई अप साइन एग्रीमेंट साइन हुआ बेसिकली इंडियन एथलीट ऑफिशियल किट स्पॉन्सर करने के लिए? सो करेक्ट आंसर जहां पे रिमेंबर रखो, पीमा इंडिया हैज साइंड अ डील विद द एथलीट फेडरेशन ऑफ द इंडिया टू बिकम इट्स ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ओवर द 100 billion in remittance as per the United Migrants Agency? So basically as per this report कौन सी कंट्री टॉप है जो माइग्रेंट्स जाते हैं ना बाहर काम करने के लिए, वो जो पैसा भेजते हैं कंट्री में, तो कौन सी कंट्री इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रिमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है? सो इज इट अमेरिका, जापान, इंडिया एंड पाकिस्तान? ओके, सो गेस करो कौन सी कंट्री हो सकती है, कहां के लोग सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं अपने कंट्री में जो पैसा भेजते हैं बेसिकली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंडिया। सो रिमिटेंस मींस मनी सेंड टू द होम ऑन बिहाफ ऑफ द माइग्रेंट्स, जो कंट्री से बाहर रहते हैं और काम करते हैं और अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं, तो ऐसे कंट्री के लिस्ट में इंडिया इज ऑन टॉप टू रिसीव द फॉरेन रिमिटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the youngest Indian mountaineer to climb the world highest peak Mount Everest? काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्यों है यंगेस्ट है, who has become the youngest Indian? So सुविधा, कटगल, याशी, जैन, रविंद्र कुमार एंड काम्या कार्तिकलन। So what is the name of this mountain climber who is the youngest Indian mountaineer? So इस टाइप के जो भी रिसेंट में जिन्होंने भी न्यू रिकॉर्ड बनाया रहेगा, चाहे वो स्विमिंग को लेकर के हो, माउंटेनिंग को लेकर के हो, एनीथिंग, ऐसे पर्सनालिटी पे काफी अच्छे से फोकस करना, ट्राई करना, उनके नाम को रिमेंबर करने का। नेक्स्ट है यहाँ पे, who has been appointed as the new brand ambassador for the Muthoot Papancham Group MPG? So again देखो सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन को मैंने कवर किया, चाहे वो बैंकिंग हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, अपॉइंटमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, बैंकिंग हो। सो इन्हीं सब टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस मुथूट पापंचम ग्रुप? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रिमेंबर रखो, शाहरुख खान। ठीक है, तो बेसिकली शाहरुख खान विल प्रमोट प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी, मल्टीपल चैनल प्रमोटिंग and company across the multiple channel and services in the new role. So basically he will promote all the product and services of this company. So just remember the name of the Shahrukh Khan. He is appointed as a brand ambassador for this company. Which international institution hold more than half of the Reserve Bank of India gold reserve? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा इसी चैनल पे, आप देख लेना, जिसमें मैं कंप्लीट ये पूरी स्टोरी बताऊंगा गोल्ड रिजर्व का, किस तरह से इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली मंगाया है, क्यों मंगाया है, क्या था ये पूरी स्टोरी। सो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर लो, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड फेडरल रिजर्व बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। सो बेसिकली यहाँ पे विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गोल्ड रिजर्व बेसिकली मंगाया है? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? सो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, सो आरबीआई मूव 1 लाख केजी, लगभग समझ सकते हो 10 क्विंटल, okay, from the UK basis back to the India. First such move of the quantum since 1991. So 1991 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। So just remember रखना फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक पूरे डिटेल वीडियो में। ओके, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करना। Who has been approved by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) as a chairman of the board of director of the ICICI Prudential Life Insurance Company? So what is the name of the person? देखो यहाँ पे फाइनेंशियल न्यूज है, यहाँ पे इस पर्सन को बेसिकली अप्रूव किया गया एज अ अपॉइंटमेंट। सो MS रामचंद्रन, संदीप बत्रा, अनिल अंबानी एंड रतन टाटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अप्रूव्ड एज अ चेयरमैन of this board?
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संदीप बत्रा. सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया IRDA हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द संदीप बत्रा एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. तो जितने भी फाइनेंशियल न्यूज में इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, MD हो, CEO, चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी पोस्ट पे, तो ऐसे पर्सनालिटी जब न्यूज में होते हैं तो आपको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना चाहिए. सो माय सजेशन कि अगर डेली बेस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इट्स वेरी गुड हैबिट. अदरवाइज ट्राई करो कि कुछ मंथली मैगजीन फॉलो करो एंड इस सीरीज को फॉलो करो, तो जिससे आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, तो कर सकते हो तो करो, नहीं तो एटलीस्ट ये सीरीज फॉलो करो, कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहेगा और काफी फिल्टर, आपको बहुत कम एफर्ट देना, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व. Which institutions has been awarded the Nelson Mandela Award for the health promotion for 2024 by the World Health Organization WHO? So Indian Institute of Technology Bombay, National Institute of the Mental Health and Neuroscience, All India of the Medical Science and Tata Memorial Hospital. So what is the name of the institution? So correct answer इसका हो जाएगा National Institute of Mental Health and Neuroscience. So National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore has been conferred with the World Health Organization WHO 2024 Nelson Mandela Award. तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो इंस्टीट्यूशंस को मिलता है. तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस को मिला है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट है यहाँ पे, which university secured the top position in the Time Higher Education Asia University Rankings 2024? So what is the name of the university? Tsinghua University, Peking University, National University of Singapore and Indian Institute of Science. So what is the name of the institute which received the top score in this ranking, Times Higher Education University ranking? So correct answer इसका हो जाएगा Tsinghua University. So according to the latest release, the Time Higher Education Asia University 2024, the Indian Institute of the Science and way up from the Indian Institute 32nd position, and the Asia University ranking higher competitiveness with the basically इस टाइप के जो भी रिपोर्ट रिलीज होता है उस पर अच्छे से फोकस करो, यहाँ से एक्सपेक्टेड होता है ये सब सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, what was the growth rate of the Indian economy 2023-2024 according to the National Statistical Office NSO released on 31st May 2024? So देखो, इस टाइप के जो रिपोर्ट होते हैं, जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन होता है बेसिकली जीडीपी का, तो ऐसे न्यूज के लिए मेरा सजेशन है कि आप करंट अफेयर्स रीड कर रहे हो, विच इज फाइन, बट व्हेन योर एग्जाम विल बी हेल्ड, तो उससे जस्ट 3-4 मंथ पहले का ही जस्ट ट्राई करो रिमेंबर करने का, बिकॉज वी आर कवरिंग हियर एज पर द वीक वाइज. तो इस वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो अंडरस्टैंड करके रखो, रीड करो, बट जब भी एकदम फोकस से रिविजन्स की बात आए तो 3 मंथ पहले का जो इस टाइप का डेटा होता है, जीडीपी फॉरकास्ट, जो जीडीपी प्रेडिक्शन वाला, तो वही मोस्टली एग्जाम में आता है. ठीक है, तो जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम होगा तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट 3-4 मंथ में रहेगा तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर से उसके बाद है, नेक्स्ट आपका दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, देन जनवरी फरवरी में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप उस टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं, बट अभी के लिए पढ़ रहे हो तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट. ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8.2 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ. द इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रो बाय 8.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि पूरे साल का जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इन सबके प्रेडिक्शंस आपको रिमेंबर करने की नीड नहीं है, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कितना 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए मेरा सजेशन है कि व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स, सो ट्राई टू फोकस कि अपडेट करते रहो, बट हाँ, एकदम जो फोकस करके रिमेंबर करना होता है वो 3 से 4 मंथ पे ही फोकस करना होता है, सच टाइप ऑफ रिपोर्ट जिसमें कि जीडीपी फॉरकास्ट किया जाता है. Okay, so that's it. 20 important question from the first week of the June month, guys. So hope so. सेशन काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, काफी हेल्पफुल होगा प्रिपरेशंस के लिए. तो माय सजेशन इज दिस, कंटिन्यू फॉलो करते रहो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो. ये सारे क्वेश्चंस हाईली एंड हाईली एक्सपेक्टेड है, काफी फिल्टर एंड रिसर्च करके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, तो अच्छे से रिवाइज करते रहो. इफ यू वांट दिस कंटेंट, ये क्वेश्चंस रिवीजन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ग्रुप है जो कि टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो, वेयर आई विल शेयर दिस कंटेंट फॉर द रिवीजन पर्पस. इसका मंथली कंपोडियम भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा, एज वेल एज एग्जाम रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी और रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो. वीडियो कैसा लगा एंड
कितना बेनिफिशियल है, यू कैन गिव योर फीडबैक इन कमेंट एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. And if you want to start your preparations under the guidance of the expert faculty who already appeared these exam multiple time, काफी अच्छे से जो शॉर्टकट की प्रिपेयर करते हैं, जो कि इंडिया बेस्ट शॉर्टकट की है स्पेसिफिकली फॉर द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए एंड इंग्लिश एंड जीके के सारे बेटर कंटेंट के लिए. सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. मैनवर ज्वाइन कर सकते हो. फॉर ऑफलाइन के लिए यू कैन ज्वाइन फॉर द वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली. इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, अगर आप मुंबई आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ मुंबई ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट, so it's a good chance for you can join our online platform where you will get the pre-recorded live lecture, everything, doubt classes, and you can connect with the faculty जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं. सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. एवरीथिंग यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी. Okay, so if you want, so you can join. That's it from today's session. Hope so this session will be helpful for you. So continue, we will cover the most important current affairs as per the week wise. So channel से connected रहो. वीडियो का जो भी फीडबैक हो you can give in a comment, और अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Okay, see you in next part 3 next week on Saturday. जय हिंद.